کی زندگی ہے، ایک دن جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے۔ کوئی بندہ احساس کرے نہ کرے یہ ختم ہو جانی ہے۔ جوان کو بھی موت آنی ہے، بچے کو بھی موت آنی ہے، بوڑھے کو بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے رب کو راضی کریں، پھر اس نفس کو گویا کہ پسے پٹ ڈال دیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اس نفس کی قربانی دیں، اس نفس پر کنٹرول کریں۔ اگر یہ نفس خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس نفس کو راضی نہ کریں۔ اس لیے یہ نفس گویا کہ امارہ اور نفس لوامہ، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر اس نفس پر کنٹرول کر لیا، ہم نے اپنے بدن پر کنٹرول کر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلہ، حضور علیہ السلام ایک رات مسجد میں گئے، صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، 20 رکعت تراویح کی پڑھائی، دوسری رات پھر تشریف لے گئے، پھر پڑھائی، تیسری رات جب ہوئی تو صحابہ اکرام کی بڑی تعداد مسجد میں آ گئی اور حضور علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے تو حضور نے صحابہ کو دیکھا، بڑی صحابہ کے اندر جستجو اور بڑی جو ہے گویا کہ ایک تڑپ تھی کہ حضور آتے ہمیں نماز پڑھاتے۔ حضور علیہ السلام جب صبح ہوئی، حضور نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری تڑپ تھی کہ حضور آتے ہمیں نماز پڑھاتے، لیکن میں اس ڈر کے مارے نہیں آیا کہ اگر میں آتا اور یہ پڑھا دیتا یہ 20 رکعت تراویح کی تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتی اور پھر تم کل کو اس فرض کا جو ہے وہ گویا کہ اس کے بجا نہ لاتے تو تم گناہگار ہو جاتے، اس لیے فرمایا میں نہیں آیا۔ پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے دور خلافت میں گویا کہ انتشار تھا، کوئی ایسے لوگ تھے جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تو ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اب کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی تھی، حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شریعت مکمل ہو چکی تھی، اب کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہ حکم اگر ہم بجا لائیں گے تو یہ فرض ہو جائے گا، یہ ضروری ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں جو سب سے بڑے قاری تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ ان صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے حضور علیہ السلام کے صحابی نے باقی صحابہ اکرام کو 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھائی۔ اب حضرت عمر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے اور آج یہ 15ویں صدی ہے اور اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ اجماع امت نے اس پر اجماع کیا ہے، آج تک یہ مسلسل چلا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ عمل سنت ہے اور یہ مردوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو گویا قرآن کی سعادت بھی انہیں نصیب ہو جائے گی، 20 رکعت پڑھیں گے تو 40 سجدے ان کو نصیب ہو جائیں گے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں تو سجدہ کر تو میرے قریب ہو جا۔ اللہ کا قرب کس میں ہے؟ سجدے میں ہے۔ جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جتنے سجدے ہماری کثرت کے ساتھ ہوں گے ہم قیامت کے دن جو اس کا مقام پائیں گے۔ اللہ کا قرب جب حاصل ہو گیا بندے کو تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے اس نماز کا اہتمام کرنا، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا کرتے؟ صدقہ کثرت کے ساتھ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعمال میں اتنے تیز ہو جاتے کہ گویا تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے، اتنے حضور کے اوپر جو ہے کیفیت رمضان کی آ جاتی اور اس میں کثرت کے ساتھ جو اعمال کرتے، اور کثرت کے اعمال گویا کہ صدقہ کثرت کے ساتھ کرتے۔ کوئی بھی سائل آ جاتا حضور علیہ السلام اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، عام دنوں کے علاوہ اس کو اور زیادہ جو ہے سخاوت فرماتے اور صدقہ کرتے۔ اور دوسری نمبر پر عمل کون سا ہے؟ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کریں۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल जिब्राइल अमीन के साथ रमज़ान मुबारक में कुरान की जो है वो तिलावत यानी दौर किया करते थे। हुजूर जिब्राइल अमीन को सुनाते और जिब्राइल अमीन हुजूर को सुनाते। फिर आखिरी जो रमज़ान था हुजूर का, आखिरी उम्र का, गोया उसमें हुजूर ने 2 मरतबा जो है दौर किया जिब्राइल अमीन के साथ। तो ये आज हुफ़ाज़ जो है रमज़ान में एक दूसरे को कुरान का जो है वो दौर करते हैं, सुनाते हैं मंजिल। ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने भी यही अमल किया था, इसलिए कुरान की तिलावत कसरत के साथ। और तीसरा अमल क्या है? नवाफिल कसरत के साथ। चौथा अमल है जिक्र कसरत के साथ। पांचवा ये है कि गुनाहों से अपने आप को बचाएं। आम दिनों में आंखों के गुनाह, जुबान के गुनाह, कानों के गुनाह, गाने सुनते हैं, ये कानों के गुनाह है। क़यामत के दिन इन कानों के अंदर शीशे को पिघला कर गोया ऐसे कानों में जो है ठोंसा जाएगा जिन्होंने अपने इन कानों के जरिए से इन कंजरियों की इन आवाज़ों को सुना होगा। आज हमारी नौजवानों की गाड़ियों को देखें और गोया कि घरों से आवाज़ जो है वो कानों की आएगी। अगर कुरान की आवाज़, तिलावत की आवाज़ आ जाए तो फ़ोन करते हैं पुलिस वालों को कि भाई मस्जिद से आवाज़ आ रही है, ज़रा ऊंची आकर बंद करो। वो फ़ौरन आ जाते हैं। और अगर रात को 12 बजे यहाँ पर मार्केट के अंदर किसी दुकान के अंदर अगर गाने लगाए हों, इतना ऊंचा वॉल्यूम किया होता है, खुदा की कसम उसके लिए किसी को ये जुर्रत नहीं होती कि इस आवाज़ को बंद करवाएं। उस दिन यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था, आवाज़ ज़रा बाहर चली गई। यहाँ से किसी ने फ़ोन किया पुलिस वालों को कि भाई ये आवाज़ ये कुरान की और ये अल्लाह के नबी की हमें क्यों आ रही है, इसको फौरन आकर बंद करो। और उससे 2 दिन पहले यहाँ मार्केट के अंदर रात को 12 बजे गोया मुझे भी गोया नींद से जो है जगा दिया उस आवाज़ ने, और गानों की आवाज़ आ रही थी। उसके लिए किसी को जुर्रत ना हुई कि फ़ोन करे भाई ये आवाज़ बंद करें। ये है मुसलमानों का हाल, ये है मुसलमानों का हाल। खुद फैसला कर लें कि इस हाल में क्या होगा। तो इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाएं। 11 महीनों में जो गुनाह हो चुके हैं, गोया कि अब इस महीने के अंदर हर गुनाह से अपने आप को बचाएं। सबसे बड़ा गुनाह इस वक्त हमारे अंदर क्या है, जिसको हम गुनाह भी नहीं समझते, और वो गीबत है। गीबत और अलगीबत अशद्दु मिन ज़िना। गीबत जो है ये ज़िना से भी बड़ा संगीन गुनाह है। इसको हम गुनाह तस्वर नहीं करते। 5 वक्त का नमाजी होगा, पहली सफ में बैठने वाला होगा, वो भी गीबत के अंदर मुब्तला होगा। आम आदमी को तो छोड़ें, जो नमाज के लिए नहीं आता उसको तो छोड़ें, जो 5 वक्त का नमाजी होता है वो भी गीबत के चस्के में इतना पड़ चुका है, उसको इतना चस्का लग चुका है कि वो ज़रा से मस्जिद से बाहर जाते हैं, 2-3 की टोलियाँ मिल जाती हैं। ओ यार ऐसा हुआ, मौली साहब ने ऐसा किया, वो ऐसा हुआ। अरे तू अपने 6 फुट के वजूद पर देख, तू कौन सा अमल जो है सीधा कर रहा है, जो दूसरों की तरफ जो है तेरी उंगली उठ रही है। ये गीबत सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह है, और इसको आज हम गुनाह तस्वर नहीं कर रहे। इसलिए फरमाया गुनाहों से अपने आप को बचाओ। और छठा काम कौन सा है? तिलावत, दुआ, कसरत के साथ दुआ करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तहाला फि दुआ, दुआ के अंदर गिड़गिड़ाते, खूब रोते। वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो गुनाहों से मासूम थे, गुनाहों से पाक थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिड़गिड़ाते, रोते, मांगते। और आज खुदा की कसम बदअमालियों की वजह से हमें अल्लाह के खौफ की वजह से रोना नहीं आता। ये बात है या नहीं है? मैं अब अगर कहूं कि कौन है जिनको खौफ की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से रोना आता है, हाथ उठाएं, तो चंद आदमी होंगे। खुदा की कसम हमें रोना नहीं आता, रोना नहीं आता। ये क्यों? हमारे दिल जो हैं वो स्याह हो चुके हैं बदअमालियों की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों, अब चंद दिन बाकी हैं रमजान से पहले, तौबा कर लें, अपने दिलों को नरम कर लें, मोम की तरह नरम करें, ताकि रमजान में सहरी के वक्त अल्लाह के सामने हाथ उठाएं। हमें रोना है खौफ की वजह से, और ये अल्लाह के खौफ की वजह से एक मक्खी के पर के बराबर भी अगर कोई कतरा जो है वो बहेगा, ये क़यामत के दिन उसके लिए रायगा नहीं जाएगा, उसके लिए ज़रिया निजात बनेगा। दुनिया के लिए हम रो रहे हैं, कोई मर जाए उसकी उस वजह से नहीं रोते कि ये मर गया, मुझसे जुदा हो गया। नहीं, कहते आए ये मुझे पैसे देता था, ये कमा कर लाता था, ये तावन करता था। वो चीजें सामने आती हैं, उसकी कदर नहीं है। वो जो जा रहा है उसकी कदर नहीं है। खुदा की कसम आपने सुना होगा, और ये तो मेरे साथ बड़े एहसान करता था, ये पैसे लाता था, ये करता था, ये करता था। आदमी की कदर नहीं नजर आएगी, उन चीजों की कदर है।
उन चीजों की वजह से हम रो रहे होते हैं, हाँ 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 मुझसे जुदा हो गए। अरे इन चीजों को छोड़ो, ये फना हो जाने वाली है। उस आदमी की कदर अपने दिल के अंदर बसाओ कि वो एक आदमी था, अल्लाह का बंदा था, मेरे साथ हम नशीन था, मेरे साथ उठता बैठता था, मेरे दुख दर्द में शामिल होता था। उसकी कदर अपने दिल के अंदर सजाओ, और अल्लाह के खौफ की वजह से जो आंसू बहेंगे वो रायगा नहीं जाएंगे। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजान के अंदर सहरी करना ये सुन्नत है। फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान फर्क क्या है कि सहरी करना। अहले किताब सहरी नहीं करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। बरकत क्या होगी? फरमाया मुहद्दिसीन फरमाते हैं बरकत ये है अल्लाह उसके जिस्म के अंदर ताकत डाल देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, रमज़ान में बसा औकात बहुत सारे लोग जो हैं वो आम दिनों के अलावा ज़्यादा काम करते हैं, करते ही नहीं करते, ये अल्लाह बरकत डाल देते हैं। और इसी तरह रात को खड़े होकर इबादत ज़्यादा करते हैं, ये अल्लाह बरकत डाल देते हैं सहरी की वजह से। ये दो बरकतें हैं, रात को खड़ा होना और दिन को जो है काम ज़्यादा करना। जिसको ये दो बरकतें हासिल ना हो वो ये समझे कि मैंने सहरी की बरकत हासिल नहीं की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमज़ाना, जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया ईमान और इख्तिसाब के साथ, उसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके पहले वाले गुनाह इस तरह माफ़ करेंगे जिस तरह एक बच्चा जो है माँ के पेट से दुनिया में आता है। जिस तरह एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है, गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह करीम इन रोज़ों की वजह से इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अल्लाह करीम के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आदमी के सगीरा गुनाह नहीं है तो अल्लाह करीम कबीरा गुनाह को भी माफ़ फरमा देंगे। और फरमाया हज़रत आयशा फरमाती है काना सलातु फी रमज़ान व गैर रमज़ान, हुजूर की नमाज रमज़ान और गैर रमज़ान में फरमाया वाहिदा आशरा, फरमाया कि इहदा आशरा, हुजूर की 11 रकातें होती थी रमज़ान और गैर रमज़ान में। 11 रकात, 8 रकात तहज्जुद की नमाज, 3 रकात वितर, तो 3 और 8 कितनी हो गई? हज़रत आयशा फरमाती हैं रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात नमाज हुजूर की होती थी। इससे पता चला कि ये जो हम 8 रकात साबित करते हैं ये हुजूर के गैर रमज़ान में भी होती थी। तो गैर रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इस हदीस से पता चला कि ये जो 11 रकातें हैं ये गोया के आम रमज़ान के अलावा भी रमज़ान के अलावा भी और रमज़ान के अंदर ये हुजूर पढ़ते थे। और ये कौन सी है? 8 तहज्जुद की नमाज और 3 जो है वो वितर की नमाज, तो ये 11 हो गई। इसलिए हदीस कुदसी है, फरमाया कि अयुशरफल मोमिन क़ियामुल लैल, मोमिन जो है रात के क़याम की वजह से उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन आदमी जब तहज्जुद की नमाज में खड़ा होता है अल्लाह के यहाँ उसका इज्जत और उसका मकाम ऊंचा हो जाता है। और फरमाया इस्तिग़नाउहु अनिन नास, इस रात के तहज्जुद की नमाज की वजह से वो लोगों से मुस्तगनी हो जाता है। लोगों से उसको कोई लालच नहीं है, ये मुझे देगा, ये मेरी कोई सिफारिश करेगा, ये इस्तिग़ना हो जाता है उसके अंदर। तो पता ये चला जो आदमी तहज्जुद की नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है, एक तो अल्लाह करीम के यहाँ उसका मकाम ऊंचा हो जाता है और दूसरा वो लोगों से मुस्तगनी होता है। लोगों से उसको कोई परवाह नहीं है कि ये मुझे कोई दे न दे, कोई परवाह नहीं है। मेरी हक बात से अगर कोई नाराज होता है नाराज हो जाए, मुझे नहीं देता न दे, इस्तिग़ना इसको कहते हैं। तहज्जुद की नमाज कितनी फजीलत है मेरे मुसलमान भाइयों। आप और मैं अल्लाह के घर में बैठे हम सोचें हमें लोगों से इस्तिग़ना है? नहीं है। हम तो देखते हैं यार ये ज़रा वडेरा है, इसके ज़रा चापलूसी कर लूँ मुझे 2 रुपये दे देगा, ये गाड़ी इसकी अच्छी है। वो आपको मिसाल एक दूँ ना कि नाराज़ ना होना। एक बंदर था और वो बैल के पीछे जा रहा था। बैल जो है उसके खुसैतैन जो है कटे हुए नहीं थे, उसके पीछे जा रहा था कि ये कब घिरेंगे मैं खाऊंगा। वो बैल जाकर घर में घुस गया
اور وہ بیچارہ بندر اسی طرح رہ گیا۔ ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جو ہے جاتے ہیں، یار یہ کرنل صاحب ہے اس کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے، یہ وزیر ہے اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے، یہ جو ہے MNA ہے اس کے ساتھ تعلق جڑا۔ کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم میری زندگی کا تجربہ یہ، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے نکمے ہیں۔ اپنے رب کو منوا لے، اپنے رب کے ساتھ خدا کی قسم تعلق جوڑ لے، اللہ کریم اتنا دے گا دنیا والے حیران رہ جائیں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس منبر پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ان لوگوں سے استغنا کرے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ اتنا دے گا دنیا والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ کس چیز میں ملے گا؟ یہ تہجد کی نماز میں۔ میرے دوستو، اگر 11 مہینے ہم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو اس مہینے میں رات کے آخری پہر میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، خوب گڑ گڑا کر پڑھیں، لیکن یاد رکھیں وتر کی نماز جمعات کے ساتھ رمضان میں افضل ہے، لہٰذا وتر کی نماز پڑھ لیں، آخر میں اٹھ کر 8 رکعت پڑھ لیں تہجد کی نماز، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سحری کریں۔ اللہ کریم انشاءاللہ ان برکات اور انوارات سے نوازیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ اور پوری امت کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا